morning, everyone. A very warm welcome to all respected guests, teacher, and my dear student present here. I am Roshni Shukla, biology teacher at Prerna Vidyalaya. We all are gathered here for a प्रेरणा हायर लर्निंग सेशन। आज हम सभी के लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि हमारे बीच आदरणीय सुविधा गुप्ता मैम, जो कि चार्टेड अकाउंटेंट हैं, वो स्पेशल गेस्ट के रूप में उपस्थित हैं। एक बार पुनः मैं प्रेरणा विद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। Now, I would like to invite Rudraksh Beta ji to please come forward and present a bouquet to our honorable guest. Now, moving forward, I would like to invite Ojasvi Beta ji to share the background of the higher learning session. A very good morning to our esteemed guests, principal, teachers and fellow students. Welcome to our Prerna Higher Learning Speaker Series, where main aim to inspire students towards academic excellence rooted in human values. In June 2029, Prerna Vidyalaya launched Prerna Higher Learning Institute for focusing in-depth learning for classes 9 to 12. For this purpose, rich subject content was selected and disseminated to the students through audiovisual medium and through our subject mentors from across India. In addition to this, weekly higher learning classes were held to teaching leadership, team building and other soft skills. In 2022, Prerna Higher Learning Institute establishes the Prerna Higher Learning Speaker Series. In this program, school invites inspiring public personalities every month to meet our senior students. This session helps us to understand the values, quality, and efforts needed to become successful and responsible individual in society. In past, we had honor to interact and listen to Mr. Pradeep Gupta ji, IPS Additional Director General of Police Chhattisgarh, Mr. Ranbir Sharma ji, IAS Collector of Bemitra, Dr. Geeta Vegumanti ma'am, a famous ophthalmologist then of Hyderabad Medical College and stem cell researcher and scientist. Mrs. Geeta Patel ji, a district judge, Mr. Kumar Rajesh ji, a renowned journalist, Mrs. Ashrita Vegumanti Nanduri, an actor and many more. Thank you ma'am for gracing us with your presence today. We look forward to your life journey today and learning important and valuable life lessons. Thank you ma'am, and once again welcome to Prerna Vidyalaya, a school inspiring its students to live with a sense of fulfillment in family and society. थैंक यू बेटा जी। जैसा कि आपने सुना, इस सेशन में हम ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आमंत्रित करते हैं जो समाज में उच्च पदों पर कार्य कर रहे हैं। उनके अनुभव हमारे विद्यार्थियों को प्रेरणा और दिशा प्रदान करते हैं। इसी श्रृंखला में आज आपका हमारे साथ जुड़ना हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि का संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगी। मिस सुविधा गुप्ता मैम, हु इज़ ओरिजिनली फ्रॉम कानपुर, उत्तर प्रदेश, is a practicing chartered accountant and a dedicated mentor for students. उन्होंने कठिन परिश्रम के बावजूद अपने स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ 1998 में सीए की उपाधि प्राप्त की। सी स्ट्रांगली बिलीव इन द पावर ऑफ एजुकेशन एंड और आप बच्चों को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। थ्रू हर यूट्यूब चैनल सी प्रोवाइड फ्री अकाउंटेंसी लेक्चर फॉर स्टूडेंट्स. Their mission to make every child independent and confident in life. We are truly fortunate to have such an inspiring personality among us today. Please, ma'am, share your valuable insight with us. Hello. Hi. हाय करो भाई। आपने मुझे वेलकम किया, मैं आप लोगों को वेलकम करती हूँ। यहाँ आना, यहाँ बैठना, जो भी यहाँ आता है
बड़े लोग छोटे लोग जो भी आता है उसको बैठ के सुनना, सुन के यहीं छोड़ जाना या साथ ले जाना, गेम बस वहाँ पर है। जब मैं क्लास 11th में थी तो सभी बच्चे शैतान होते हैं अपने टाइम में, दैट वाज 1991 राइट। तो हम लोग बहुत हल्ला मचा रहे थे क्लास में, और हम लोगों को क्लास से ऊपर, बिकॉज 11th-12th वाज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास एंड बहुत एकेडमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग क्लास होती है, तो हम लोगों को रूफ टॉप पे कमरा था ताकि स्कूल आपको डिस्टर्ब ना करे। एंड बट वी वर सो नोटोरियस कि हम पूरे स्कूल को डिस्टर्ब कर रहे थे बिकॉज हम वहाँ से इतना हल्ला मचा रहे थे। सो सडनली व्हाट हैपेंड, द प्रिंसिपल केम टू द क्लास एंड शी सेड that your parents are investing too much in you. Do something that you make them proud of you. कुछ ऐसा करके दिखाओ कि उन्हें तुम पे गर्व हो. And she went away. She was very furious on us. उन्होंने डांटा, पनिशमेंट दिया, जो भी कुछ किया, और वो क्लास से चली गई. ये बात मुझे आज भी याद है. It's been so many years, 91 से लेके आज तक. क्योंकि ये बात पूरी क्लास में किसी ने सुनी या नहीं सुनी मैं नहीं जानती, मैंने सुनी. और वहाँ से शुरू हुआ ये गेम. तो कई बार बहुत छोटी सी कही हुई बातें वो आपकी लाइफ में कैसा चेंज लेके आएंगी. मतलब आज अगर मैं बोलूँ तो जो हमारी प्रिंसिपल थी मिस आभा जोशी, आज मेरे यहाँ होने का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनको जाता है, क्योंकि शुरुआत उस दिन उन्होंने करी थी. आई वॉज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट. ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही ऐसा कि अरे सी ये है, कुछ नहीं था. So it is basically the mindset, the determination, the focus, the consistency, the patience और हारने की क्षमता. आप हार गए तो मतलब आपने कोशिश की थी. अगर आप हारे ही नहीं तो मतलब कोशिश ही नहीं करी तो गेम किस बात का. तो वो जो प्रिंसिपल मैम उस दिन बोल के गई थी, बस वहीं से गाड़ी बदली. अब गाड़ी तो बदल गई. Now I belong to a middle class conservative family. ठीक है, पापा हमारे किराने की दुकान करते हैं, बिजनेस है उनका. उनके हिसाब से लड़की का 12वीं हो गया, उसको बीकॉम में एडमिशन दिलाइए, बीकॉम बीए बीएससी जिसमें भी उसको एडमिशन लेना है, लड़का खोजिए और शादी कर दीजिए. ये मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं बात कर रही हूँ उस जमाने की. अब से करीब नहीं तो 25 साल पुरानी बात, उससे भी ज्यादा, राइट. मगर मैंने तो प्रिंसिपल की बात सुन ली थी, तो मेरा तो दिमाग खराब हो चुका था. तो जो लड़की कल तक शादी और ये सब चीज़ों के बारे में सोचने में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, अचानक एक कॉन्वर्सेशन से, एक डिस्कशन से, एक आवाज़ से उसकी ज़िंदगी पलट गई. मैं घर आई, मैंने बोला मुझे कुछ बनना है. बोले क्या बनना है? बोले मुझे कुछ बनना है. एंड दिस इज, आप लोगों को लग रहा होगा शायद कि मैं कुछ फैब्रिकेट कर रही हूँ, कुछ मैनिपुलेट कर रही हूँ, बट हकीकत मानिए, अगर ऐसा ना हो गया कि बोलते बोलते मेरे आंसू आ गए तो भी कम है. क्योंकि मुझे एक्चुअली आई कैन विजुअलाइज, आई कैन सी व्हाट हैड हैपेंड. तो ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये चेंजेस कभी भी किसी की भी लाइफ में, जो कल तक बहुत खेल खिलौना खिलाड़ी है जिसको कोई चीज़ से मतलब नहीं है, वो अचानक इतना रिस्पॉन्सिबल बन सकता है. ये उसका एग्जाम्पल हूँ मैं. अब मेरे पापा को तो टेंशन हो गई, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है. घर में खूब, मतलब एक्चुअली इट वॉज अ बिग न्यूसेंस एट माई प्लेस. बट देन आई वॉज डिटरमाइंड. फिर मेरी नानी के घर पेशी बैठी कि भाई इसको समझाइए, ये तो कुछ करना है. बट आई वॉज डिटरमाइंड, मुझे कुछ करना है, क्योंकि मुझे उन माँ बाप को प्राउड फील कराना है जिन्हें प्राउड फील होने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मगर मुझे तो कराना है. एंड देन द जर्नी स्टार्टेड. और उसके बाद में कहते हैं ना, वो आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी, कौन सी, ओम शांति ओम, आई डोंट नो, शायद आपके एरा की पिक्चर है या पुरानी हो चुकी है, कि अगर आप कोई चीज़ को शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात आपकी कोशिश में लग जाती है आपको मिलाने के लिए. सुना ये डायलॉग? दैट वर्क फॉर मी. मुझे जब सीए फाउंडेशन का फॉर्म भरने का आखिरी दिन था, उस दिन मुझे पता चला कि ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है हमारे यहाँ पर जिसका फॉर्म भरने का आज आखिरी दिन है, और हम पैसे से बहुत अच्छे नहीं थे. सो आई वेंट देयर एंड आई आस्क्ड द इंस्टीट्यूट पर्सन, और वो भी हमारे शहर में था, वो सब शहर में नहीं होता है. सो डेस्टिनी होती है जहाँ आपको वो जोड़ देती है. तो क्या हुआ उस सिचुएशन में, मैं वहाँ गई, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा फीस कितनी लगेगी, बिकॉज मुझे पता था मुझे घर में कोई सपोर्ट नहीं करेगा, मुझे घर से पैसे नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं होगा, और पॉकेट मनी का तो वो टाइम ही नहीं हुआ करता था. तो उस सिचुएशन में उन्होंने कहा कि पैसा हम ज़्यादा नहीं लेते, जान ले लेते हैं. दैट वॉज लिटरली वॉट ही मेंट टू से, दैट इट इज़ अ वेरी टफ एग्जाम. और मुझे क्योंकि कुछ करना है, पैसे हैं नहीं, शहर में मिल रहा है. मैंने ऐसे पैसे नहीं है तो ऐसा नहीं है कि हम दो टाइम की रोटी कमाते थे, ऐसा नहीं है. इट वॉज वेल टू डू and I was studying in a convent school, but the thing is this कि आप पैसा वहीं खर्च करते हैं जहाँ आप खर्च करना चाहते हैं.
माई फादर वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन माई स्टडीज, तो वो वहाँ कभी पैसा नहीं खर्च करेंगे। उन्होंने कहा पैसा कम लगेगा, जान ज़्यादा लगेगी। मैंने कहा जान दे दूंगी, क्योंकि मुझे तो कुछ करना है, मुझे तो उनको प्राउड फील कराना है। एंड इट जस्ट हैपेंड। और वो सीए फाउंडेशन का मैंने एग्जाम दिया एंड कैन यू बिलीव इट, आई क्वालिफाइड एट 50.5%, 50% वॉज पासिंग। डेस्टिनी आपका सहारा जरूर बनती है, मगर पहला कदम आपको उठाना होता है। आपको अक्सर लगता होगा अरे भाग्य में लिखा है तो हो जाएगा, भाग्य में लिखा है तो मिल ही जाएगा। हो सकता है भाग्य में ये लिखा हो कि अगर तुम प्रयास करोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा, तो प्रयास तो करना ही पड़ेगा। हम में से कितने हैं जो खाने की थाली सजी हुई हो और हमें लगे कि यार खाना खाने का मन नहीं है, ड्रिप लगा दो, हम लेट जाते हैं, ड्रिप लगा दो, शरीर में चढ़ा दो, वो तो मरण समान है। इसलिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है हर चीज़ के लिए, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। वो पढ़ाई में हो, वो खेल में हो। मेरा भाई बैडमिंटन खेलता था, वो एक गेम हार गया, उसने रैकेट तोड़ दिया, बोला तभी मतलब अपने आप को कंफर्टेबल करूंगा जब इससे जीत जाऊंगा, और अगले दिन जीत गया। इसलिए नहीं कि उसने सोच लिया, इसलिए उसने सोच के साथ रात भर प्रैक्टिस करी, रात भर वो अकेला खेलता रहा। अब बैडमिंटन अकेला खेलते हैं कि दो लोग खेलते हैं, जो भी है, पर उसने अगले दिन जीता और उसके बाद उसे शांति पड़ी। तो कहने का ये मतलब है कि शॉर्टकट नहीं होता लाइफ में। आज मैं आप लोगों को देख रही हूँ, अभी थोड़े दिन पहले, कुछ साल पहले जब जीएसटी लॉन्च हुआ था, ठीक है, उस समय क्या हुआ, हम जहाँ रहते थे ना वो एक गली थी सब बच्चे गली में खेला करते थे, और मैं अपने घर के एक जंगले में, जैसे ये आपका स्कूल का जो गेट है वो लोहे का जंगला है, तो हमारे वहाँ भी ऐसे ही जंगला था, उसके भीतर मेरी टेबल लगी होती थी और मैं वहाँ बैठ के पढ़ा करती थी। तो हमारी गली के एक भैया ने मुझे जब जीएसटी लॉन्च हुआ फ़ोन किया कि सुविधा तुमको जीएसटी आता है? मैंने कहा हाँ आता है मुझे, एंड आई हेल्प हिम। उनका कपड़े का काम था, उनको जो मदद चाहिए थी, एंड यू नो व्हाट वर्ड्स वर देयर। बोले आज मुझे समझ में आया कि तुम जंगले के भीतर बैठ के क्या करती थी जब हम बाहर गली में क्रिकेट और गुल्ली डंडा खेल रहे होते थे। दिस इज द डिफरेंस। हम मैं जितने टाइम गैप की बात कर रही हूँ वो आपकी उम्र से लेकर आपके 40 साल की उम्र पे पहुंचने के बीच की दूरी के बाद अगला एक्नॉलेज करता है। अगर इसे हम कॉम्प्लीमेंट ना कहें तो क्या कहें? और ये तो वो बातें हैं जो मेरे सन में अपनी गली की, अपने मोहल्ले की, अपने रिश्तेदारों में, अपनी फैमिली की पहली पढ़ी हुई लड़की थी, पहली पढ़ी हुई इंसान थी आई शुड से। बाकी सब वही ग्रेजुएशन, बिजनेस, वही लाइफस्टाइल था। तो शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। शुरुआत करने के लिए आपको बस अपने से बात करना है। बहाने तो हम 50 बनाते हैं, बहानों का तो कोई अंत नहीं। हमारे पास ट्यूशन नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, इंटरनेट नहीं है, हमारे पास ये, बहानों की लिस्ट तो इतनी लंबी है, लेकिन हौसले की एक ही है, यस आई कैन डू इट, आई विल डू इट। बस फिर रास्ता अपने आप बनता चलता है, रास्ता खत्म नहीं होता। रास्ते में अगर आपको कहीं मोड़ना है ना तो रास्ता मोड़ भी देगा आपको, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको लेके जरूर जाएगा। द थिंग हैज टू कम फ्रॉम यू विद इन, दैट्स फॉर श्योर। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कुछ किसी को समझ में आ रही है? ठीक है। सो दैट वाज अबाउट मी, एंड उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? देन आई गॉट मैरिड टू एन इंजीनियर, जो कि अदरवाइज शायद मैं किसी ग्रेजुएट से मेरी शादी हो जाती। फिर उसके बाद मेरी 2 डॉटर्स हैं, एक इंजीनियर बन चुकी है, वो नोएडा में जॉब करती है, और जो दूसरी है वो इंजीनियरिंग की लाइन पे है। अभी उसके क्लास 12 चल रहे हैं, जिस दिन रिजल्ट आएगा उसका नेक्स्ट 15 डेज में मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और उसके आजकल वो जेई के, IIT के, बिटसैट के, ये सारे एग्जाम्स चल रहे हैं। तो फैमिली में किसी ने भी मेरा कॉमर्स तो नहीं उठाया, लेकिन पढ़ाई की तरफ मेरी जो ज़ील थी और कुछ करने का जो एक मेरा जज्बा था, वो ज़रूर मेरी फैमिली ने उठाया है। So that is what I am, that is how I am, and ठीक है, हो गया मेरे बारे में। तो मेरे बारे में कहानी वहीं ख़त्म होती है। जिस दिन मैंने CA कंप्लीट कर लिया, उस दिन मेरे पापा मुझे ऐसे कंधे पे ऐसे हाथ रख के, पूरे लोहड़ी फेस्टिवल था जिस दिन मेरा रिजल्ट निकला, राइट? तो लोहड़ी फेस्टिवल आप लोग समझते हैं? तो लोहड़ी फेस्टिवल हम पंजाबियों में बहुत बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। तो वो यूँ मेरे कंधे पे हाथ रख कर मुझे सबसे मिलवा रहे थे, मेरी बेटी CA है, एंड ही वॉज द मैन जो उससे 4 साल पहले तक जो उस चीज़ को सुनने के लिए भी तैयार नहीं था कि ये कुछ करना चाहती है। फिर उसके बाद ना घर में शादी की बात हुई, ना ब्याह की बात हुई, कोई बात नहीं, पढ़ो 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 पढ़ो। बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है।
लेकिन ग्रेस इतना ज़्यादा है, वो मैं आज तक, उसका ऑरा जो होता है ना, वो ऑरा आप खुद में फील करते हो, शायद इसलिए कि आप बहुत मेहनत से वहाँ तक पहुँचते हो। ये हो गया मेरे बारे में, ठीक है, बस करें। Okay, so we have class 9th, 10th, 11th and 12th, right? 11th and 12th, all streams we have here. Science, we have humanities in the school? No? Science and commerce? Science and commerce, ठीक है। और 9th और 10th वाले कौन से हैं? अरे हाथ उठाओ यार। Okay, put your hands down. मैं अभी कुछ दिन पहले डीपीएस गई थी, डीपीएस धमतरी स्कूल में। सो वहाँ आई हैड टू लिटरली टेल देम, भैया हाथ उठाओ, इसको कहते हैं हाथ उठाना। पता नहीं कौन से लेवल तक हाथ उठ रहा था कि वो उठा हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। सो ऑल ऑफ यू 9th and 10th हाथ उठाओ। यस, वेरी नाइस, पुट योर हैंड्स डाउन। ओके, सो मैं एक जो बच्चे इस समय 9th में हैं, उनको तो ये पता है कि क्लास 10th तक उन्हें डिसाइड नहीं करना कि हमें क्या स्ट्रीम लेनी है, दे आर इन द सेफ जोन, राइट। लेकिन जो 10th में है, वो भी अभी क्योंकि शुरुआत हुई है 10th की, कुछ तो ऐसे होंगे जिन्हें प्री डिसाइडेड होगा कि मुझे कौन सा स्ट्रीम लेना है, मगर कुछ ऐसे होंगे जो कन्फ्यूजन में होंगे, साइंस लेना है कि कॉमर्स लेना है कि ह्यूमैनिटीज़ लेना है, राइट। ये आपके अपने मन की आवाज़ होती है, ये आपके अपने इंटरेस्ट की बात होती है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। एक छोटी सी पोयम है मेरे सामने, जो अगर मैं पढ़ के बताऊंगी तो मुझे उम्मीद है कि 9th and 10th वालों को अपनी इनर इंस्टिंक्ट से ये समझ में आ जाएगा कि कौन सी स्ट्रीम ऐसी है जो उन्हें बुला रही है। कोई स्ट्रीम छोटी या बड़ी नहीं होती, ये 5 उंगलियां अगर एक बराबर होती, अगर ये सारी एक लेवल पे होती, तो ये हाथ किसी काम का नहीं होता। इसको पेन पकड़ने के लिए एक छोटा एक बड़ा चाहिए, मुट्ठी बंद करने के लिए अलग शेप चाहिए, कुछ और काम करने के लिए अलग शेप चाहिए। तो इस वजह से कोई चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होती, आपकी इनर इंस्टिंक्ट क्या कहती है वो आपको फॉलो करना है। साइंस वाला महान नहीं होता और ह्यूमैनिटीज़ वाला छोटा नहीं होता। जब साइंस वालों के दिमाग खराब हो जाते हैं तो ह्यूमैनिटीज़ वाले साइकोलॉजिस्ट के पास ही दिखाने जाते हैं। एम आई राइट? यस और नो? ठीक है, तो अब मैं आपको एक छोटी सी पोएम बताती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको इन तीनों स्ट्रीम्स का जो बेसिक डिफरेंस है वो समझ में आएगा। 3 रास्ते आगे आए, 3 रास्ते आगे आए, क्या चुनना है भाई? साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, किसमें है भलाई? साइंस बोली, मैं हूँ जादू, मैं हूँ जादू ज्ञान का, प्रयोगों की दुनिया, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनो, खोलो नई चुनौतियाँ, तारों से लेकर दवाइयों तक सब मुझ में समाया, मेहनत थोड़ी ज़्यादा है पर सपना सच करवाया। आप कोई भी सपना अगर देखते हैं कि काश मेरे भी पंख होते और मैं उड़ता, ये कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ वाला नहीं कर सकता। समझ गए? कॉमर्स वाला बोलेगा लो मैं हिसाब लगा देता हूँ कि पंख लगा के उड़ना है और अगर गिरोगे तो कितने की पट्टी बंधेगी। और ह्यूमैनिटीज़ वाला बोलेगा हाँ सो जाओ, सपनों में उड़ो, कौन कहता है तुम्हें जागने को। साइंस वाला है जो आपके सपनों को उड़ान देता है, राइट। नाउ कॉमर्स, पैसे का मैं खेल सिखाऊं, बिजनेस की मैं समझ बढ़ाऊं, सीए, एमबीए, सीएस बनकर दुनिया भर में नाम कमाऊं, बैंकिंग, मार्केटिंग, शेयर ट्रेडिंग, सब कुछ है मेरे पास, सही निर्णय लेकर बनो सफल जीवन का प्रकाश। सीए, एमबीए, सीएस, बैंकिंग, शेयर ट्रेडिंग, इन सब में पैसा है। देखा? तो जिसका दिमाग पैसे पे चलता हो उसके लिए कॉमर्स बना है। जिसका दिमाग नई सोच, नए ख्याल, नई चीज़ें इनोवेट करने में चलता हो कि लाल और लाल को मान मिलाएंगे तो लाल ही क्यों बनेगा, लाल लाल को मिला के पीला क्यों नहीं बन सकता, भैया तुम साइंस ले लो। समझ में आया? हम क्या कहेंगे कॉमर्स वाले कि भाई लाल और लाल मिलाओगे तो लाल ही तो बनेगा, लेकिन साइंस वाले क्यों भाई पीला क्यों नहीं बन सकता। तो ये साइंस जो सोचता है, जो क्यूरियस होता है, वो लेता है साइंस। नाउ कमिंग टू ह्यूमैनिटीज, मैं हूँ दिल और सोच, समझाऊं समाज की बात, हिस्ट्री, आर्ट्स, लिटरेचर से बनती है,
मेरी पहचान खास। टीचर, राइटर, लॉयर, साइकियाट्रिस्ट बनो या बनो नेता महान, मेरे संग सीखो तुम इंसानियत का ज्ञान। दिस इज ह्यूमैनिटीज, उसके टर्म में ही ह्यूमन है। तो जितनी चीजें हमारे पर्सनल ट्रेट से निकल कर आती हैं, आई एम अ राइटर, आई एम अ टीचर, आई एम अ साइकियाट्रिस्ट, आई एम अ लॉयर, ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं? ह्यूमैनिटीज से आती हैं। हम में कोई बैर नहीं, अब ये तीनों एक साथ बोल रहे हैं, हम में कोई बैर नहीं, सबकी अपनी राह, जो दिल को अच्छा लगे उसी में है चाह। हर सपना होगा पूरा जो करोगे मेहनत पूरी, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, जो करो जतन से करो और अपनी सोच को मजबूत रखो और आगे बढ़ते चलो। तो आपको समझ में आया कि कॉमर्स, साइंस और ह्यूमैनिटीज में बेसिक डिफरेंस क्या है? ठीक, ये हमारा अपना बेंड है कि हमको क्या चीज पढ़नी पसंद है। जो आपको पढ़ना पसंद है वो सब्जेक्ट उठा लीजिए। और ये मेरा 100% मानना है कि भगवान ने हर एक इंसान को एक ना एक ऐसा ट्रेट जरूर देकर भेजा है जो उसे दूसरों से अलग बनाता है। आप उस ट्रेट को खोजिए। कई बार क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स नहीं बन पाए, डॉक्टर नहीं बन पाए, इंजीनियर नहीं बन पाए, तो वो बच्चों में खोजते हैं। बच्चा अपने ट्रेट्स लेके पैदा हुआ है, उनके नहीं। तो इसलिए आप क्या बनना चाहते हैं? मैंने कहा ब्लेम गेम खेलना बहुत आसान होता है, एक्सक्यूजेस बनाना बहुत आसान होता है। पापा ही नहीं करने दिया, फॉर्म के पैसे ही नहीं दिए। अरे भाई, तुम्हारे मोबाइल में हर महीने का 200 रुपए का रिचार्ज तो डल रहा है, पॉकेट मनी तो बन रही है, उससे पैसे काहे नहीं जोड़े? डू नॉट मेक एक्सक्यूजेस इन लाइफ। आप, हमारे अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट होता है। डेबिट मतलब घटना इन जनरल, क्रेडिट मतलब बढ़ना। ये फैक्ट नहीं है, व्हेन यू कम टू अकाउंटेंसी इट इज नॉट ट्रू, बट देन तो आपकी लाइफ की जो डेबिट्स हैं वो भी आप ही के होते हैं और आपके जो क्रेडिट्स हैं वो भी आप ही के होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि गलती हो गई तो किसी और के सिर पे डाल दिया और अच्छा हो गया तो अपना क्रेडिट ले लिया। ऐसा नहीं होता, ये गलत है, ये सोच गलत है। यस बोलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और अपनी सही और अपने गलत की जिम्मेदारी खुद उठाने का हमारे ऊपर बूता होना चाहिए। आज अगर मैं चाहूँ कि आप लोगों के मोबाइल में कोई कुकिंग का ऐप डाल दूँ, आप लोग के पास मोबाइल होगा? नहीं, आप लोग यहाँ रहते हो इसलिए यू डोंट हैव दैट। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग अभी तक उस प्योर एंड पायस एनवायरनमेंट में हैं जहाँ से आप अपने दिमाग को जो दिशा चाहें वो दिशा दे सकते हैं। अब आप लोगों को कुछ पूछना है मुझसे? एनीथिंग, एनीबडी, आई एम ओपन टू एनीथिंग। और हो सकता है आपके सवाल कुछ ऐसे हो जिनका मेरे पास अभी के अभी जवाब नहीं हो, बट बिकॉज मैं यहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ी हूँ तो मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं आपके क्यूरियस माइंड्स में जो भी जवाब आ रहा है उसका सही जवाब दूँ। तो अगर मेरे पास जवाब नहीं हुआ तो मैं आपका सवाल लिख के ले जाऊँगी और फिर मैं आपका जवाब अगली बार में दूँगी, पर दूँगी ज़रूर, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। इसलिए किसी को कुछ पूछना है? एनीबडी, एनी क्वेश्चन? नोबडी? यस प्लीज। नमस्ते, मेरा नाम मनीष है, मैं क्लास 12th कॉमर्स फील्ड से हूँ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि चार्टेड अकाउंटेंट के क्या क्या पावर्स हैं और वो किस किस चीज़ में इंटरफेयर कर सकता है कंपनी के? ओके, मैं कुछ पूछूं आपसे? आपने चार्टेड अकाउंटेंट के ड्यूटीज नहीं पूछे, आपने उसके पावर पूछे। क्या ये मैं बस यूं ही समझूं या आपने बहुत प्रिसाइज होके पावर पूछे हैं? प्रिसाइज करने के लिए पूछा क्योंकि ड्यूटीज तो कुछ कुछ लगभग पता है। ओके, बेटर। कुछ और कहना है अपने सवाल को थोड़ा इलैबोरेट करने के लिए? चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत कहाँ आती है? एक कंपनी में आती है या कोई भी व्यापार होता है, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कॉमर्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड निकली हुई है जिसमें कि हर व्यापारी को, वो व्यापारी साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, किसी भी बैकग्राउंड से हो सकता है। मान लो मैं एक इंजीनियर हूँ और मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया तो मुझे एक सीए की ज़रूरत पड़ेगी मेरे रिकॉर्ड्स को देखने के लिए। स्टार्टअप किसका है? मालिक का। हम कौन हैं? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की ऑर्गेनाइजेशन में ड्यूटीज होती हैं,
जिसके लिए उसको रेम्युनरेशन मिलती है, उसकी पावर नहीं होती। उसकी अथॉरिटी में ये आता है कि उसे अपने बॉसेस के लिए, जिनके लिए भी वो काम कर रहा है, उनकी वेल बीइंग के लिए, उनका दो पैसा बचाते हुए, उनके सारे कंप्लायंसेस को देखते हुए, ताकि उनके ऊपर लीगल फ्रेमवर्क में कभी कोई अड़चन ना आए, वो कहीं ना फंसे, ये उसकी जिम्मेदारी भी है, यही उसकी अथॉरिटी भी है और यही उसकी पावर भी है। क्योंकि मालिक तो वही रहेगा जो मालिक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट कभी भी मालिक नहीं बन सकता। आपकी इस बात पे मुझे एक किस्सा याद आया, पहले बताऊं। एक बार एज अ सीए मैं ऑडिट पे गई थी, कुछ सूर्या करके कुछ क्लाइंट था हमारा, बहुत पुरानी बात है। तो तब मैं सीए नहीं थी, तब मैं आर्टिकल थी, आप लोगों की एज से थोड़ी बड़ी, 5 साल बड़ी रही होंगी आपसे। तो मुझे ये गलतफहमी हो गई कि शायद मुझे इस सेगमेंट की कमियां निकाल के, मुझे एक बहुत बड़ा फ्रॉड वहाँ पकड़ में आया। तो वो फ्रॉड का मैंने छुप छुपा के, जैसे फिल्मों में जासूसी करते हैं ना, वैसे मैंने जासूसी करके पूरा उसके डॉक्यूमेंट, फोटोकॉपी, तब फोटोकॉपी चलती थी, मोबाइल तो थे नहीं उस ज़माने में, फोटोकॉपी करके करा के मैं फाइल बना के अपने साथ ऑफिस ले आई। और वो एक, जैसे C&F एजेंट्स होते हैं, C&F एजेंट्स क्या होते हैं कि कंपनी तो जहाँ होती है वहाँ होती है, और वो हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपने एजेंट्स बनाते हैं। तो वो सूर्या रोशनी लिमिटेड, जो उस समय बल्ब एंड ट्यूबलाइट्स बनाती थी, उस कंपनी के C&F एजेंट था जहाँ पर मैं ऑडिट पे थी। और उस C&F एजेंट के रिकॉर्ड्स में मुझे कुछ गड़बड़ी मिली। वो कुछ एक्सपेंसेस, इनको क्या होता है कि इनको एक्सपेंसेस कंपनी से क्लेम करने होते हैं कि हमने यहाँ खर्चा किया, ऐसा किया, वैसा किया। तो उसने सारे एक्सपेंसेस को फैब्रिकेट कर रखा था, मतलब सारे एक्सपेंसेस में 0 बढ़ा दिया था। अभी 100 में 0 बढ़ाओगे तो 1000 बन जाएगा, और 1000 में बनाया तो 10,000 बन जाएगा। तो उसने सारे कर रखे थे, और मुझे कैसे ना कुछ खोजने खाजने पर वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिल गए जो 100 रुपये लिखे थे, 10 रुपये लिखे थे, 50 लिखे थे। और जब मैंने उसको बिल से कंपेयर किया तो वो सारे उसमें से एक एक जीरो कुछ ऐसे बढ़ा हुआ था। ठीक है, मैंने पूरा रिपोर्ट बनाई, चिट्ठा बनाया। ये हमारे ऑडिट का पावर नहीं था, हमें ये नहीं करना था, लेकिन मुझे लगा कि मैं तो बहुत ऊंचे जा रही हूँ अपने उस पर। तो मैंने क्या किया, मैंने उसकी पूरी रिपोर्ट बनाई, और जो हेड ऑफिस थी सूर्या रोशनी लिमिटेड का, जो रजिस्टर्ड ऑफिस था, वहाँ पर मैंने जो चीफ ऑडिटर या मालिक थे या डायरेक्टर थे, मैनेजमेंट थे, उनको मैंने वो पूरा ड्राफ्ट और भेज दिया। ठीक, इतना काम मैंने किया। इसका हुआ क्या, उसकी एजेंसी कैंसिल हो गई। बड़ी खुशी की बात है, उन्होंने कहा कि आप चीटर हैं, आपकी एजेंसी हम कैंसिल करते हैं। लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, मेरी दुकान बंद हो गई। तो समझ में आया, हमारा ऑडिटर, हमारा क्लाइंट कौन था, वो C&F एजेंट। जैसे ही उसकी एजेंसी छीनी गई तो क्या स्टेटस हो गया कि हमारा काम चला गया। तो वो काम हमारे अथॉरिटी के बाहर का था, फिर भी हमने अपने, अब तो हमारे सीए में एक लाइन चलती है, यू आर अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड। वॉच डॉग मतलब देखो, निगरानी करो, एंड ब्लड हाउंड मतलब वो शिकारी कुत्ते जो इंसान को देखते ही उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। तो ये हमारे सीए में चलता है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, सो एज अ सीए पावर वर्ड डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। The word that exists is your responsibility, your duty, and you are being paid for that. And you have to diligently supply and provide your duties and your responsibilities. क्योंकि कंपनी तो जिसकी है उसी की रहेगी, पैसा उसी ने लगाया है, वो आपको तनख्वाह दे रहा है या कंसल्टेंसी दे रहा है, and you have to do your task diligently. Am I clear? अगर सीए हो करके आपको पावर्स चाहिए, आप अपना स्टार्टअप शुरू करिए, अपना ऑफिस शुरू करिए, वहां पर सारा का सारा गेम आपके हाथ से होगा। Am I right? Got the answer? Great, thank you. Anybody else? Any question? CA, non-CA, career, profession, whatever, कुछ भी. Anybody? Please. गुड मॉर्निंग, मेरा नाम अनमय है और मैं 10th क्लास में हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जो सी होता है तो वो एनवायरनमेंट या नेचर पे क्या उसका प्रभाव होता है, और वो नेगेटिव वे में होता है या पॉजिटिव वे में? Good. So, as a CA, better ना? So CA as an environmentalist है, ठीक है। एनवायरमेंटलिस्ट कौन होता है, जिसको नेचर का केयर करना है।
सो सीए एज अ प्रोफेशन एनवायरनमेंट को बहुत डायरेक्टली तो सपोर्ट या डिससपोर्ट नहीं करता, क्योंकि उसकी जो सर्विसेज हैं दे आर मोर ऑन माइंड बेसिस, राइट? दे आर मोर बेस्ड ऑन कंप्यूटर थॉट प्रोसेस एंड वकील वकालत एंड लिखा पढ़ी इसमें. बट अगेन कमिंग टू योर क्वेश्चन, एक सीए एनवायरनमेंट पे डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि डायरेक्टली वो एनवायरनमेंट को नुकसान ही नहीं पहुंचाता है. अब इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूं कि मान लो एज अ सीए मैंने ऑफिस बनाया और उसमें 15 एसी लगवा लिए, ये गलत था. बट यहाँ पर मेरा एज अ सीए होना या नहीं होना मैटर नहीं करता, ये तो एज अ ह्यूमन बीइंग गलत था, राइट? समझ में आ रही है मेरी बात? तो अगर मैं फिर सीए पे वापस आती हूँ तो ये हो सकता है कि भाई मेरे क्लाइंट कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, वो कह रहे हो कि ये जंगल हटा देंगे और जंगल को हटा के मैं यहाँ पर एक वो बनाऊंगा, मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा, जो कि जनरली होता है और जनरली जिसको बहुत लोग अपोज करते हैं, रिवोल्ट करते हैं. मान लीजिए ऐसा कोई चीज़ मेरे पास आता है, तो मेरे पास एज अ सीए ये है कि नहीं, आप जंगल हटा के कर रहे हैं तो मैं आपके प्रोजेक्ट पे काम नहीं करूंगा. मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा, मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा, क्योंकि उन्हें सीए चाहिए और सीओ की कमी नहीं है. तो और आप अगर फिर भी हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं, तो आप एज अ सीए इनडायरेक्टली ये सपोर्ट कर सकते हैं कि अब जैसे ये बंडल ऑफ पेपर्स मैं प्रिंट निकाल के लाई, सो इनडायरेक्टली मैं एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही हूँ. यस, मैं इसको अपने मोबाइल पे भी ला सकती थी, अपना लैपटॉप भी साथ में ला सकती थी, मैं एक ही पेज को साइज छोटा करके इसको 4 पन्नों में भी प्रिंट कर सकती थी, और मैं इसको पीछे के साइड प्रिंट लेकर के भी मैं पेपर बचा सकती थी. So this is not very precise to a chartered accountant. It applies to every individual, every human being. समझ गए आप? तो सीए का डायरेक्टली एनवायरनमेंट वाला चीज नहीं आता है. वो अलग बात है कि वो सीए होने के साथ में एक नेचर लवर हो और वो उस पर कुछ काम कर सके. गुड? यस. एनीबडी एल्स फ्रॉम गर्ल साइड? हाय. हाय. बाकी सब भी सोचो, कुछ ना कुछ तो आया होगा मन में पूछने लायक. जिसको जो भी आया हो पूछो. नमस्ते, मेरा नाम वेदिका शर्मा है, मैं 11th में पढ़ रही हूँ. मैंने कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ किया है. तो मेरा एक क्वेश्चन था, अगर सीए के लिए मुझे 11th से प्रैक्टिस करनी है तो कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए, या फिर पढ़ाई 12th के बाद करनी चाहिए सीए के लिए? मैंने आपके सवाल में 2 बातें हैं. पहली चीज, अभी जहां हम शुरू हुए हैं वो 11th की शुरुआत है, तो ना 11th की शुरुआत सही समय है सीए की पढ़ाई शुरू करने के लिए, ना 12th के बाद से. Am I right? ठीक है. अब आपने एक चीज देखी जो मैं भी अभी ऑब्जर्व कर रही हूँ. मैं अभी आती हूँ आपके क्वेश्चन पे वापस. आपने एक क्वेश्चन पूछा मनीष ने, ठीक है. मैंने उस क्वेश्चन को पहले एनालाइज किया, अंडरस्टैंड किया, पावर्स एंड ड्यूटीज के बीच का फर्क असेस किया, फिर जवाब दिया. आपने एनवायरनमेंट पे पूछा, मैंने क्वेश्चन को ब्रेक किया, सीए वर्सेस एनवायरनमेंट. आपने पूछा, मैंने तुरंत 11th एंड 12th का अभी आपका जवाब नहीं दिया मैंने, बट मैंने ये जो एनालिटिकल पावर है, आप समझ रहे हैं, ये मैं इसके लिए तैयार होकर नहीं आई हूँ, लेकिन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपका थॉट प्रोसेस ऐसा हो जाता है कि आप कुछ चीज़ों को कुछ बोलने से पहले, बात करने से पहले आप चीज़ों को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, अपने सेल्फ में उसको एनालाइज करते हैं और उसके बाद आप उसका जवाब देते हैं. सीए में बहुत ही क्रूशियल सेगमेंट होता है केस स्टडी, राइट? अब वो केस स्टडी में क्या होता है कि आपको वो पूरा एक पैराग्राफ दे देंगे, उस पर बहुत सारे एक्ट्स, बहुत सारे लॉज को करते हुए उन्होंने कहानी बनाई. एक लड़का है 38 साल का, इंडिया में रहता है. आपने सुना, एक लड़का है 38 साल का, इंडिया में रहता है, बिजनेस करता है. एक सीए इसको कैसे सुनेगा? पहली चीज, वो लड़का है, तो कहीं कोई जेंडर बायस क्लॉज तो नहीं है. दूसरी चीज, वो 38 ईयर्स का है, तो कहीं किसी भी लॉ के किसी भी फ्रेमवर्क में एज के लिए कोई बार्स तो क्रिएट नहीं किए गए हैं. तीसरा, वो इंडिया में रहता है, इसका मतलब वो एनआरआई नहीं है, उसका जो स्टेटस है वो रेजिडेंट इंडिविजुअल का स्टेटस है. और चौथा, वो व्यापार करता है. क्या जीएसटी का काम किया उसने?
क्या उसने TDS का काम किया? क्या उसने अपने लेबर लॉस फॉलो किए? क्या उसने PF और ESI फॉलो किया है? वो कहेगा भैया मैं तो बात बता रहा था, मैं तो पिक्चर की कहानी सुना रहा था, आप तो कहीं और ही चले गए। दिस इज द पावर ऑफ एजुकेशन। आप बात को सुनते ही, ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं ये कोई फिल्म की कहानी सुना रहा होता तो मैं भी किसी और की तरह बैठ करके सुन रही होती, लेकिन जैसे ही वो कोई सिनेरियो समझा रहा है यार आपको, और आपसे कोई प्रोफेशनल एडवाइस मांग रहा है, तो आपका चीज को सुनने का, सोचने का नजरिया ही बदल जाता है। Am I clear? Now coming to your question. क्लास 11th स्टार्टिंग जहां अभी आप हो, दैट इज अ वेरी इनिशियल, आपको पता ही नहीं है। इकोनॉमिक्स आपने शायद क्लास 9-10 में पढ़ा होगा, या आई डोंट नो, अगर नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, उसमें तो रहा होगा तुम्हारा। SST में तो इकोनॉमिक्स भी होता है ना, 4 में से, है ना? हाँ, तो उतना इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा है, आपको वो पसंद आया कि नहीं आया, आई हैव नो क्लू। बट टू बिगिन विद, अकाउंट्स आपके लिए एब्सोल्युटली नया सब्जेक्ट है। अगर मैथ्स आपने लिया है, मैथ्स लिया है, यस, मैथ्स नहीं लिया, इट डजंट मैटर, इट्स ओके। अकाउंट्स काफ़ी है आपको थकाने के लिए। तो अकाउंट्स आपने लिया है, आपके लिए नया सब्जेक्ट है, क्लास 11th में आए हैं, अभी सब्जेक्ट से मोहब्बत करने का टाइम है। कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स दे आर सो ब्यूटिफुल कि अभी उनको समझिए। अभी ये मत सोचिए कि मुझे CA करना है, क्योंकि अभी तो आपको उसकी ABC भी नहीं पती। अभी आपको सिर्फ इतना ही पता है कि यार CA क्या हुआ, A पहले आना चाहिए, C बाद में आना चाहिए, अभी सिर्फ उतना ही नॉलेज है, ठीक है? तो अभी नहीं, जब आप 12th में पैर रख लेंगे, कंसीडरिंग वेरी गुड स्कोर इन क्लास 11th, दैट विल गिव यू अ साइकोलॉजिकल बूस्टअप दैट यस आई एम इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है? आप एकेडमिकली स्कूल में कैसे हैं मैं नहीं जानती हूँ, हो सकता है आप 10th तक टॉपर रहे हो, एवरेज रहे, कुछ भी। मैं बहुत एवरेज थी, सिर्फ एक थॉट था जिसने मुझे ये बताया कि कुछ करना है। अभी क्या करना है वॉज नॉट द आइडिया, कुछ करना है। सो इट कुड बी CA, इट कुड बी CS, इट कुड बी CFA, इट कुड बी CMA, देयर आर hundreds and hundreds of lines। अभी आपको डिलीजेंटली जो पढ़ाई आप कर रहे हैं, आपको उससे जस्टिस करना है। यू हैव टू फॉल इन लव विद एकेडमिक्स। एक बार आपको अपने सब्जेक्ट्स पसंद आने लगे तो दुनिया आपके लिए बहुत खुली हुई है। आपको ये सोचने की अभी ज़रूरत ही नहीं है कि मुझे CA करना है या मुझे क्या करना है, इट्स टू अर्ली। 12th क्लास में जब पैर रखेंगे तब हम सोचेंगे, तब हम फिर सेशन करेंगे, हम फिर रिकन्सिडर करेंगे कि अब हमारे ट्रेड्स क्या है। मुझे कॉमर्स तो मुझे बहुत पसंद है, अकाउंट्स नहीं जमता, मुझे इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा लगा, BBA इकोनॉमिक्स करो ना, BBA इकोनॉमिक्स करो, MBA इकोनॉमिक्स करो, इकोनॉमिस्ट बन जाओ। मैम मुझे ये बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट बहुत प्यारा लगता है। अरे यार तो फिर है ना MBA HR करो, यहाँ कहाँ जा रहे हो? मैम उसमें जो लॉ आता है ना, लॉ मेरे कंपनी सेक्रेटरी करो ना, LLB करो। मैम सारा का कॉम्बिनेशन बहुत मज़ेदार लगता है मुझे, तो ये स्ट्रीम ही बहुत, CA करो ना, समझ रहे हो? तो इसमें से इतनी लाइंस निकलती हैं जो एक एक सब्जेक्ट को उठा करके फिर उसका पोस्टमार्टम हो करके अलग प्रिसिशन लाइंस बनती हैं। जिस सब्जेक्ट के जिस सेगमेंट में आपको इंटरेस्ट है, द टारगेट इज दिस कि पढ़ाई से प्यार होना चाहिए। और मैं एक बात और बोलती हूँ, मेरी बेटी अभी छोटी बेटी, आई हैव 2 daughters, वो क्लास 12th में है, अभी उसने बोर्ड्स दिए, मतलब 12th पास, अभी बोर्ड्स दे दिए हैं, और वो JEE वगैरह मैंने आपको बताया कि वो इसी लाइन में तैयारी कर रही है। जब वो क्लास 9th में थी, राइट, 8th में, 7th 8th 9th 10th क्लास तक, तो मुझे मम्मी बॉलीवुड में जाना है, मुझे एक्ट्रेस बनना है, एंड शी डांसेस वेल। मैंने उसको कथक में, भरतनाट्यम में एनरोल कराया, पर वो हो नहीं पाया फॉर सम रीजंस। मुझे ना एक्ट्रेस बनना है, ठीक है भाई। अब बॉलीवुड के लिए तो कौन ही इंस्पायर करता है बच्चों को, तो जिसको बनना होता है भाग जाते हैं घर से, मैंने तो यही सुना है। तो ऐसा तो हमारा नहीं है कि बॉलीवुड में चले जाओ, बट अगर बच्चे का मन है, मैं उसको क्यों बोलूँ कि तुम BTech करो या तुम कॉमर्स करो या तुम ये करो, मैं क्यों बोलूँ भाई? उसकी अपनी लाइन है, उसकी अपनी स्ट्रीम है। मैंने सिर्फ उसको इतना कहा कि कुछ भी करना हो तुम्हें लाइफ में, तुम्हें हीरोइन बनना हो, तुम्हें जो करना हो तुम करना, लेकिन पढ़ाई करने की सिर्फ यही उम्र है। पढ़ लो ताकि हीरोइन बनने के बाद जब इंटरव्यू देने जाओ तो कुछ बोलना तो आना चाहिए, कम से कम कोई बोले तो सामने वाले को ये तो लगे कि हाँ इसकी ज़ुबान से थोड़े एजुकेटेड वर्ड्स निकल रहे हैं। एजुकेशन लाइफ में दोबारा नहीं आएगी, उसको पढ़ने के लिए यही साल है।
अभी भी हो सकता है कि वो 12वीं कर रही है, बीटेक करने के बाद हो सकता है वो अपने आप को फिल्म इंडस्ट्री में कहीं देखती हो, लेकिन तब की त्रियाना गुप्ता और अब की त्रियाना गुप्ता में ज़मीन आसमान का फर्क होगा। तब मैंने उसको बताया कृति सेनन बीटेक है, सुशांत सिंह राजपूत अब नहीं रहे, वो DTU के इंजीनियर हैं, उसके बाद वो इस लाइन में आए। सो कुछ भी करने के लिए तो पूरी ज़िंदगी आपके पास पड़ी है, पढ़ने के लिए यही उम्र है। इस समय आपके पास कोई और काम नहीं है जो आपको डेडिकेट किया गया हो, आपको घरों में काम नहीं करने, आपको व्यापार नहीं चलाना, आपको 2 वक्त रोटी कमाने की चिंता नहीं करनी है, आपको कोई चिंता नहीं करनी है, आपको सिर्फ पढ़ना है। तो एक ही काम ढंग से नहीं कर पाते, पढ़ो, 12वीं तक जिम्मेदारी से पढ़ो और उसके बाद आपका जो दिल में आए वो करो। और जिसने 12वीं तक ईमानदारी से पढ़ लिया वो कोई ना कोई एक बड़ी डिग्री तो अपने हाथ में ले ही लेगा। मैं कभी नहीं कहती कि उस डिग्री को इस्तेमाल करो। मुझे पेंटिंग में बहुत मज़ा आता है। बीच में एक ऐसा टाइम आया था, मैंने CA प्रोफेशन को साइड कर दिया था कि मैं पेंटिंग करूँगी और मैंने पेंटिंग स्टार्ट कर दी। मगर वो डिग्री हमेशा मेरे हाथ में थी कि मुझे जिस समय इसके साथ जस्टिस करना है मैं इसके साथ जस्टिस करूँगी और आज मैं कर रही हूँ। सो लाइफ बहुत बड़ी होती है। हमें लगता है कि बस ये तो कल तक है, ख़त्म हो जाएगी, मुझे भी यही लगता है। पर फिर मैं जब अपनी 75 साल की माँ को देखती हूँ तो मुझे लगता है अरे अभी तो इतनी बाकी है। फिर किसी 90 साल को देख लो तो लगता है इतनी बाकी है। और अगर पीछे जाके देखो तो जो बातें आज मैं आपको बता रही हूँ उनको गुजरे भी 20-30 साल हो चुके हैं। सो लाइफ बहुत लंबी होती है, हमें कभी ये नहीं सोचना है कि ख़त्म हो जाएगी। पर ये ज़रूर है कि जो 4 साल अभी, चाहे किसी के 4 किसी के ये 12वीं तक अपने आप को ईमानदारी से पढ़ाई में रखो, एक अच्छी डिग्री अपने हाथ में लो। चाहे आपके घर में किसानी होता हो, खेती बाड़ी होता हो, ट्रांसपोर्ट का काम कुछ भी होता हो, मैं कभी नहीं बोलूँगी कि वो मत करो, नौकरी क्यों नौकरी करना। अगर बिजनेस का एतबार है, बिजनेस का हुनर है तो नौकरी क्यों करना किसी की। लेकिन एक अच्छी डिग्री आपके हाथ में होना बहुत ज़रूरी है। ये मैं जानती हूँ कि वो डिग्री ज़िंदगी भर आपको कॉन्फिडेंस देती है कि कुछ बिगड़ गया ना, कोरोना भी आ गया, ये भी हो गया, परिवार में कुछ हो गया, फाइनेंशियल क्राइसिस कुछ भी हो गया, ये डिग्री मुझे कहीं ना कहीं तो हर उम्र में खड़ा कर देगी। और जो पढ़ा लिखा दिमाग होता है उसको वो इतना ज़्यादा कार्यरत होता है, इतना ज़्यादा इफेक्टिव होता है कि उसमें आइडियाज़ आते ही आते हैं। इसलिए पढ़ाई ईमानदारी से करना चाहिए। 12वीं तक पढ़ाई पूरी ईमानदारी। मैं ये नहीं बोलती कि सब टॉप तो नहीं हो सकते ना, सब टॉप नहीं हो सकते। जो सबका दिमाग का बेंड अलग अलग होता है, सबके दिमाग का कॉम्बिनेशन, तारों का कॉम्बिनेशन अलग अलग होता है। आपने कई बार देखा होगा कोई चाइल्ड प्रोडिजीज होते हैं, वो बचपन में 3 साल में मोटरसाइकिल चला, अरे 3 साल में मोटरसाइकिल, भाई हमें नहीं चलाने तो 3 साल में भी नहीं चलती, कोई बात नहीं, आप कुछ और कर सकते होंगे। मैंने बोला सबके पास एक ना एक टैलेंट भगवान ऐसा दे के भेजता है, ये बात गारंटी है। ये जो यहाँ खड़े होकर मैं बोल रही हूँ, इसमें जितना मेरा CA का प्रोफेशन है उससे कहीं ज़्यादा मेरा कॉन्फिडेंस है। वो कॉन्फिडेंस जो मैंने क्रिएट नहीं किया है, वो कॉन्फिडेंस जो मुझे भगवान ने दे के भेजा है। तो आज की डेट में अगर मैं अपनी वैल्यूज़ को काउंट करूं तो मैं अपने कॉन्फिडेंस को उसमें ज़रूर काउंट करती हूँ, क्योंकि मैंने इसको पाने के लिए कोई एफर्ट नहीं किया है, ये मुझे भगवान ने भेजा है। इसी तरीके से आप सब में एक एक हुनर ऐसा होगा जो दूसरों से आपको अलग बनाता होगा। वो क्या है वो आपको दिखाई देगा जब अपने आप को देखोगे। नहीं देखोगे तो चल ही रहा है, सब मजे मजे चल रहा है, लेकिन देखोगे तो अपने अपना वो हुनर दिखाई देगा। उसके ऊपर ज़रूर लाइफ में काम करना, जितना जितना जिसको मौका मिल सके। ठीक है, हाँ जी, एनी मोर क्वेश्चन? नमस्ते, मेरा नाम अपर्णा है, मैं 12th कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या CA करने के लिए ग्रेजुएशन करना कंपलसरी है या नहीं? CA करने के लिए ग्रेजुएशन करना बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। CA जाने के 2 रास्ते होते हैं। मैं अभी शॉर्ट में इसलिए बताऊंगी क्योंकि 11th-12th कॉमर्स के साथ हमको अलग से टाइम मिलेगा, राइट। लेकिन इसलिए शॉर्ट में मैं आपकी बात का जवाब देती हूँ। 12वीं के बाद आप CA कर सकते हैं। 12वीं के बाद एक स्टेप, एक ब्रिज एग्जाम होता है, उसको फाउंडेशन एग्जाम कहा जाता है। जब आप 12th का पेपर देते हैं उसके बाद आप CA फाउंडेशन का फॉर्म भर देते हैं, 2-3 महीने पढ़ाई करते हैं और उसका पेपर देते हैं। उसके पेपर में 12वीं का ही सिलेबस आता है, बट उसके अपने सब्जेक्ट्स होते हैं, अपनी बुकलेट्स होती हैं जो आपको पढ़ना है। आपने वो पेपर दिया और उस तरीके से आप ग्रेजुएशन आप करेंगे तो कम से कम 3 साल स्पेंड करेंगे, उसके बाद आप CA में जाएंगे। लेकिन ऑलरेडी मान लीजिए आप उस समय डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ और भी नहीं कर पा रहा, ये भी नहीं है, आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया,
तो अगर आप ग्रेजुएशन करते करते बीच में सीए में जंप करेंगे तो आपको वो फाउंडेशन का स्टेप लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आप सीधा सीए इंटर में चले जाएंगे। सीए का पूरा सेटअप 3 स्टेजेस में होता है। वन इज कॉल्ड द फाउंडेशन एग्जाम, सेकेंड इज कॉल्ड सीए इंटरमीडिएट एंड नेक्स्ट इज कॉल्ड सीए फाइनल। तो ये जो पूरा चीज़ है उसमें अगर आप 12th या बीकॉम के मिड वे में कहीं पिक करते हैं सीए को तो फाउंडेशन स्टेप आपको लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप सीधा इंटरमीडिएट एंड देन फाइनल्स पे जा सकते हैं। ठीक है? हाँ जी, एनीबडी एल्स? पूछो नो? डन? सबको समझ में आ गई बात? वेरी गुड। मैम थैंक यू मैम। आज का यह सेशन हमारे लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रहा। जो कविता के माध्यम से आपने बताया वो सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ऐसा मुझे लगता है, और ऑब्वियसली बच्चों के लिए भी होगा। करियर ऑप्शन पाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी इसके बारे में भी आपने हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया। यह सिर्फ न केवल बच्चों के लिए बल्कि टीचर्स के लिए भी प्रेरणादायक रहा। Now, a token of our love and respect, we would like to honor our honorable guest with a diary and gift. May I request to our principal Ribha Didi ji, HR Sita Didi ji, to kindly come forward and present the diary and gift. आज का यह सत्र हमारे लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक रहा। मैं एक बार फिर से मैम का हार्दिक दिल से हार्दिक हृदय से धन्यवाद करती हूँ। साथ ही सभी शिक्षकों विद्यार्थियों का भी धन्यवाद करती हूँ जिनकी उपस्थिति से यह कार्यक्रम सफल हो पाया। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे अहेड। ऐसा कई बार होता है कि जब हम सेशन से चले जाते हैं तब आपको मन में कुछ आएगा, यार ये भी पूछ लिया होता, वो पूछ लिया होता, या नए सवाल आ जाते हैं मन में। तो मैं BSU के साथ मतलब प्रेरणा विद्यालय के साथ और आपकी टीम के साथ बहुत अच्छे से जुड़ी हुई हूँ। आपको जब कोई सवाल आए, सीता मैम के पास मेरा नंबर है, आप नंबर लीजिए, व्हाट्सएप करिए, फ़ोन करिए। यू विल हैव एम्पल ऑफ डाउट्स। आज नहीं आएगा, 2 महीने 6 महीने के बाद आएगा, कभी भी आए, मैं आपको हमेशा आपके सवालों का जवाब देने के लिए फ़ोन पे व्हाट्सएप पे बुला के, जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक? क्योंकि जब मैं आपकी मदद करती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, जो मेरी डॉटर्स हैं ज़रूर उनको भी किसी ने मेंटोर किया होगा किसी समय, जो आज वो अपनी लाइफ का एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन खुद ले पा रही हैं। तो अगर सपोर्ट की ज़रूरत लगती है अपने बारे में डिसाइड करने के लिए तो सपोर्ट लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्सक्यूज़ मत बनाइए, ना आज ना आगे कभी। ठीक है जी? ओके, चलो एक बार जोर से हिप हिप, अरे लाउडली यार, आवाज़ तो आनी चाहिए, हिप हिप। थैंक यू।